गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे एचपी बोर्ड का 2024 का क्लास 11 का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व। सो लेट अस बिगिन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी. The small portion of an atom where most of the mass of atom is densely concentrated is called nucleus. न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर सारा मास कंसंट्रेट करते हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 refers to noble gases. outermost shell में octet complete है. It's noble gases. Which of the following molecule has zero dipole moment? So answer is कार्बन डाइऑक्साइड. लीनियर होता है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल्स कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ज़ीरो डाइपोल मूवमेंट होता है इसका. देन डाइगोनल हाइब्रिडाइजेशन इज डाई मीन्स टू, so that means there are two hybrid orbitals, so one will be one S and other will be P, so answer is sp hybridization. The temperature at which a real gas obeys ideal gas laws over an appreciable range of pressure is known as Boyle's temperature. Option C is the correct answer. A thermodynamic state function is a quantity whose value is independent of path. It does not depend upon the path, only on the initial and final states. The equilibrium system carbon dioxide gas changes to carbon dioxide in solution is governed by Henry's law. Which group of elements is known as alkaline earth metals? So answer is group 2. Which carbocation is most stable? So this is a primary carbocation. This one is attached to 3 carbon atoms. So this is a tertiary, and this is a primary carbocation. This one is a secondary. It's attached to 2 more carbon atoms. Out of the 3, the tertiary carbocation is the most stable. Complete transfer of bonded pair of pi electrons to one of the atoms joined by a multiple bond. तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. तो इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट. बेंजीन रिएक्ट्स विद methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3 to form ये मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, इसका H और Cl बना के निकल जाएंगे, तो ये बनेगा C6H5CH3 which is known as toluene. So answer D is the correct answer. Define a mole. So a mole is that amount of substance which contain as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kilogram of C12 carbon. A molecular mass of methane is, हम इसके atomic mass इसको प्लस करते हैं, एक कार्बन का एटम 12, 4 हाइड्रोजन के तो 4 into 1, इनको प्लस किया आंसर आया 16 units. What are degenerate orbitals? So orbitals of the same subshell which have equal energy are called degenerate orbitals. जैसे p के 3 orbitals जो है 2px, 2p के 3 orbitals 2px, 2py, 2pz सबकी एनर्जी सेम है, तो ये degenerate orbitals हैं. Write the electronic configuration of sodium. तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, तो 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1 is the electronic configuration. Atoms of different elements having same atomic mass but different atomic numbers. For example, argon, potassium, calcium सबका atomic mass 40 है लेकिन atomic numbers different है. Isotopes are elements having the same atomic number but different atomic mass. For example, hydrogen के 3 isotopes है, protium, deuterium और tritium. Draw the shapes of dx square minus y square and dxy orbital. तो dx square minus y square में x और y एक्सिस के ऊपर जो हैं इसके लोब्स होते हैं, जबकि dxy में x और y एक्सिस के स्पेस के बीच में
इसके लोब्स होते हैं. दिस इज dx square minus y square, दिस इज dxy. कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज. N3 नेगेटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं. N का एटॉमिक नंबर 7 प्लस 3 इसका चार्ज है, तो 7 प्लस 3 10. यहाँ 9 इसका एटॉमिक नंबर, 1 चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स. इसमें भी 11 इसका एटॉमिक नंबर है, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया बिकॉज ऑफ 1 पॉजिटिव चार्ज, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ भी 12 माइनस 2 10, और यहाँ भी 8 प्लस 2 10, 2 नेगेटिव है. तो ये सभी जो स्पीशीज है सभी में सेम इलेक्ट्रॉन्स है. तो व्हाट इज कॉमन इन देम? दे ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक इन नेचर. अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई. तो जब हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक आयनिक रेडियस डिक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो इंक्रीज करती है. तो ये नाइट्रोजन और फ्लोरीन जो हैं ये हैं पीरियड 2 की एलिमेंट्स. इसमें नाइट्रोजन का साइज फ्लोराइड से जो है ज़्यादा होता है, तो एनायन का साइज भी इससे ज़्यादा होगा. इसी तरह जो नेक्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनका साइज सेकेंड पीरियड से ज़्यादा होगा, तो N3 नेगेटिव से ज़्यादा साइज होगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का. वो मैग्नीशियम लेफ्ट में है, सोडियम उस पीरियड में पहले आता है, तो उसका साइज ज़्यादा है. तो टोटल जो अरेंजमेंट है वो है फ्लोराइड आयन सबसे छोटा होगा, देन नाइट्राइड, देन मैग्नीशियम आयन, देन सोडियम आयन. दिस इज द order of increasing radii. Next question is, a balloon is filled with hydrogen atom gas at room temperature. It will burst if pressure exceeds 0.2 bar. So if at 1 bar pressure the gas occupies 2.27 liter volume, up to what volume can balloon be expanded? So that means कि हमें ये देखना है कि 0.2 बार पे कितनी वॉल्यूम होगी. तो हमारे पास फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2. 1 बार पे वॉल्यूम इतनी है, तो 0.2 बार पे मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी हो सकती है? V2. तो सॉल्व करके V2 आ जाएगा 1 इंटू 2.27 डिवाइडेड बाई 0.2. सॉल्व करके ये आ रहा है 11.35 लीटर. तो मैक्सिमम वॉल्यूम इतनी है, इससे ज़्यादा करेंगे तो बर्स्ट कर जाएगा. State and explain Charles' law with graphical representation. The Charles' law states that at constant pressure, the volume of a given mass of gas is directly proportional to the absolute temperature. तो अगर हम इसको graphically represent करें तो increasing temperature से volume increase करती है. So graph comes out to be a straight line. Direct proportional means straight line. Define Lee-Chatter's principle. Explain the effect of change in pressure in catalyst on equilibrium. So, Lee-Chatter principle states that at equilibrium, if a system is subjected to a change in any one of the factors, such as temperature, pressure, and concentration, etc., then equilibrium will shift itself in that direction in which the effect of the change is reduced. तो अब change in pressure जो है, अगर तो मोल्स प्रोडक्ट्स के, अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स के रिएक्टेंट से ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को इंक्रीज करने पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिसमें जाने से नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. इसी तरह अगर हम हमारे रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. तो प्रेशर में इंक्रीज पे ये चेंजेस होती है. लेकिन अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता. इसी तरह कैटलिस्ट का भी जो है इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कैटलिस्ट जिस रेट से फॉरवर्ड डायरेक्शन को इंक्रीज करता है उसी रेट से बैकवर्ड डायरेक्शन को भी इंक्रीज करता है. डिफाइन कैटनेशन. तो द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स इज कॉल्ड कैटनेशन. कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच होकर लंबी चेन्स बनाता है, दिस इज कैटनेशन.
वाटर गैसेस, जब हम कोक को रेड हॉट कोक के थ्रू स्टीम पास करते हैं तो इट फॉर्म्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. दिस मिक्सचर इज कॉल्ड वाटर गैस. कंप्लीट द रिएक्शन. तो ईथीन में हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल ऐड करेंगे, बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ और एक यहाँ ऐड हो जाएगा, सो ईथेन बनेगा. एक्सप्लेन वुड्स रिएक्शन. तो वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड्स को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करते हैं और एल्केन विद डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनता है. फॉर एग्जांपल 2 मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड के लेंगे तो CH3 और CH3 कंबाइन हो जाएंगे, ईथेन बनेगा, साथ में 2 NaCl बनेंगे. What do you understand? What do you mean by ozone hole? Write its consequences. So when chlorofluorocarbon compounds enter the upper atmosphere, they get broken due to ultraviolet radiations emitted from the sun. So free radicals are formed which destroy the ozone molecules in a stratosphere. So as a result ozone की लेयर में होल हो जाता है. इस होल को हम ओजोन होल कहते हैं. जैसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सनलाइट से ये फ्री रेडिकल्स में ब्रेक हो गया. ये फ्री रेडिकल ने ओजोन को फास्ट डिप्लीट किया, एक और फ्री रेडिकल बना और ऑक्सीजन गैस बनी. तो ओजोन ब्रेक हो जाता है तो लेयर में होल बन जाता है. इस होल को ओजोन होल कहते हैं. इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जब होल होगा तो यूवी रेडिएशंस अंदर आ जाएंगी और स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं. क्लाइमेट पे चेंज होता है क्योंकि टेम्परेचर का बैलेंस बिगड़ जाता है. इसके अलावा यूवी रेडिएशंस अगर आइज़ पे पड़ें तो आइज़ के कॉर्निया और लेंस को डैमेज कर सकती हैं और प्लांट प्रोटीन्स को भी डैमेज कर सकती हैं. दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस. इसके ऑप्शनल क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, एक्सप्लेन. तो पैथोजन की वाटर में प्रेजेंस हो जाएगी, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, तो वाटर बॉर्न डिजीजेस हो जाएंगी और वाटर पोल्यूट हो जाएगा. इसी तरह डोमेस्टिक सीवेज, एनिमल वेस्ट, एनिमल को नहलाने से, ऑयल्स की ड्रिपेज से या कूड़ा करकट जाने से भी वाटर पोल्यूट होता है. इंडस्ट्री का वेस्ट जब हम वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं तब भी वाटर पोल्यूशन कॉज करता है. तो मेजर कॉजेस ये हैं वाटर पोल्यूशन के. देन एक्सप्लेन द शेप ऑफ BF3 ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. तो बोरॉन जो है एटॉमिक नंबर 5 की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p1. तो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है. तो एक्साइटेड स्टेट में s का इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा और ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 ऑर्बिटल्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स f के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं. जो 3 फ्लोरीन एक प्लेन में अरेंज होते हैं और इस तरह से BF3 बनाते हैं. तो द शेप विल बी ट्राइगोनल प्लेनर. एक्सप्लेन नेक्स्ट इसके ऑप्शनल क्वेश्चन है, ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2 मॉलिक्यूल एंड एक्सप्लेन इट स्टेबिलिटी विद बॉन्ड ऑर्डर. तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3. तो वैलेंस शेल का 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन एटम में और 2p के तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है. ये एक एटम और ये दूसरा एटम. अब इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं. 2 ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू सिग्मा 2s और एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s. तो ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 यहाँ और 2 यहाँ आ जाएंगे. इसी तरह ये 3 and 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ऑर्डर होता है पाई 2px और पाई 2py की सेम एनर्जी है और सबसे कम है. देन सिग्मा 2pz की उससे ज़्यादा है. पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py की सेम है लेकिन इनसे ज़्यादा है और सिग्मा स्टार 2pz की सबसे ज़्यादा है. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स नीचे के ऑर्बिटल्स में अरेंज होते हैं. तो पाई 2px2 और पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2 आता है. ये एम्प्टी है, वेकेंट है ऑर्बिटल्स. अब बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग. तो बॉन्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 + 4 6 8 और एंटी बॉन्डिंग है 2. सो 8 - 2/2 इज 3. तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है. ज़्यादा बॉन्ड होने से मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है. तो दिस इज वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल. N2 इज स्टेबल. डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc फॉर एन सिस्टम. तो अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स टू रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स लेते हैं तो उसको Kc कहते हैं और अगर पार्शियल प्रेशर्स के टर्म्स में लेते हैं तो उसको Kp कहते हैं.
तो Kc will be concentration of products. रिएक्शन है A moles of A plus P moles of B form C moles of C plus T moles of D. ये products हैं, ये reactants हैं. तो concentration of product C raised to power its stoichiometric coefficient C into concentration of D raised to power D upon A raised to power A into B raised to power B. This is equilibrium constant Kc. और in terms of partial pressure Kp हो जाएगा partial pressure of C raised to power C into partial pressure of D raised to power D upon partial pressure of A raised to power A into partial pressure of B raised to power B. अब आइडियल गैस इक्वेशन कहती है PV is equal to nRT. V को इधर ले गए तो ये बन गया P is equal to N upon VRT. N upon V कंसंट्रेशन होता है. तो किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर P विल बी इक्वल टू C इंटू RT. तो जैसे C का पार्शियल प्रेशर PC हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C इंटू RT रेज टू पावर C. इस तरह से सभी की वैल्यूज़ हम Kp की, ये P की वैल्यू हो गई कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C इंटू RT रेज टू पावर C. इसी तरह D की हो गई पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ D रेज टू पावर D इंटू RT रेज टू पावर D. इसी तरह A का ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ A इन रेज टू पावर A इंटू RT रेज टू पावर A. और B की कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू रेज टू पावर B इंटू RT रेज टू पावर B. अब इसमें से C, D, A और B की कंसंट्रेशन वाली टर्म्स को अलग कर लिया तो ये आ गया C रेज टू पावर C इंटू D रेज टू पावर D अपॉन A रेज टू पावर A इंटू B रेज टू पावर B. और RT वाली टर्म्स को अलग कर लिया तो ये आ गया RT रेज टू पावर, पावर्स को प्लस कर लेंगे, ये आ गया C प्लस D और नीचे आ गया A प्लस B और प्रोडक्ट्स में से इसको माइनस किया तो ये आ गया RT रेज टू पावर डेल्टा NG. ओवरऑल इक्वेशन बन गई Kp इज इक्वल टू KC इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा NG, डिफरेंस इन नंबर ऑफ gaseous moles of products and reactants. ये हमारा रिलेशन आ गया बिटवीन Kp एंड Kc. नेक्स्ट क्वेश्चन इज write equilibrium constant Kc for equilibrium system nickel solid plus 4 carbon monoxide gives tetracarbonyl nickel. अब ये गैस है और equilibrium constant होता है concentration of products upon reactants. तो NiCO4 अपॉन Ni इंटू CO रेज टू पावर 4 हो जाएगा क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है. अब इसमें से ये सॉलिड है, बाय कन्वेंशन सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है तो ये जो इक्वेशन है इट गेट्स रिड्यूस टू Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ टेट्राकार्बोनिल निकल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड रेज टू पावर 4. दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. Explain disproportionation reaction. So a reaction in which same element undergoes oxidation as well as reduction is called disproportionation reaction. For example, H2O2 में ऑक्सीजन की रिडक्शन भी हो रही है और ये -1 से -2 में चेंज हो रहा है वाटर में, और ऑक्सीडेशन भी हो रही है -1 से ये 0 में चेंज हो रहा है ऑक्सीजन में. So 2H2O2 plus 2 will give 2H2O plus O2 is a disproportionation reaction. Combination reaction में 2 or more reactant substances combine to form a single product. For example, coke and oxygen will combine to form carbon dioxide. ये combination reaction है. Define a reducing agent. जो substance reduction करवाती है उसको हम reducing agent कहते हैं. तो जो किसी और चीज़ की reduction करा रही है वो खुद electrons lose करेगी. तो a substance which loses electron is called a reducing agent. What happens when sodium metal is dropped in water? So it burns in water, forming sodium hydroxide and hydrogen gas is released. And sodium metal is heated in free supply of air. It will burn to form sodium oxide. So these are the chemical reactions. Define diagonal relationship. तो एक ग्रुप की फर्स्ट एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रुप की डायगनली प्लेस्ड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होती हैं. इस रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप विद एलिमेंट प्लेस्ड डायगनली टू इट in the next group is called diagonal relationship. For example, lithium has properties similar to magnesium. This is diagonal relationship.
एक्सप्लेन टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर विद क्लार्क्स मेथड। तो क्लार्क्स मेथड में हम जो टेम्पररी हार्डनेस कॉजिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है उसको हम स्लेक्ड लाइम के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो वो हार्डनेस जो है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रिमूव हो जाती है। इसको फिल्टर कर लेंगे तो जो वाटर है उसमें से ये हार्डनेस रिमूव हो जाएगी और वाटर सॉफ्ट बन जाएगा। सो दिस इज क्लार्क्स मेथड। Then name the isotope of hydrogen which is radioactive in nature. Answer is tritium. What do you mean by an electrophile? So an electron deficient species which is looking for electrons is called electrophile. For example, H plus is an electrophile. Write IUPAC name. तो इस compound में straight chain straight continuous carbon chain 7 atoms की है जिसमें ये इथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब क्योंकि ई पहले आता है तो ई इस साइड से पहले आ रहा है तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे और नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। एक्सप्लेन पोजिशन आइसोमरिज्म विद एन एग्जाम्पल। तो 2 or more molecules having the same molecular formula but different structure, and the structure differs on account of the position of the functional group or substituent is called positional isomer, and the phenomena is called positional isomerism. तो यहाँ पे जैसे ब्यूट 1 and ब्यूट 2 जो है दोनों का molecular formula same है लेकिन position of double bond इसमें 1 है इसमें 2 है, तो they are positional isomers. Derive relationship between Cp and Cv. So Cv is the heat capacity at constant volume and Cp is the heat capacity at constant pressure. तो at constant volume जो heat absorbed QV है it is equal to Cv heat capacity at constant volume into delta T. So QV is equal to Cv into delta T. This is also equal to delta U. And Cp, heat absorbed at constant pressure, is equal to Cp into delta T, which is also equal to delta H. And we also know that for 1 mole of a gas, delta H is equal to delta U plus delta PV. अब PV is equal to nRT होता है तो delta PV की जगह delta RT भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आई delta H is equal to delta U plus delta RT या R delta T। अब delta H की जगह अगर हम Cp dt डालते delta T और डेल्टा यू की जगह अगर सी वी डेल्टा टी डाल दें तो हमारे पास आ गया सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय डेल्टा टी हर जगह से कैंसिल आउट हो जाता है और इक्वेशन बनती है सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, और सी वी को इधर ले गए तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी पी एंड सी वी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फ्री एक्सपेंशन। तो इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ a gas expands in such a way that no heat enters or leaves the system. That is, it's an adiabatic process, and also no work is done on or by the system. Isolated system. A system is said to be isolated if it neither exchanges energy nor matter with the surroundings. What do you understand by inert pair effect? So the reluctance of valence s electrons to participate in bond formation is called inert pair effect. What is allotropy? The phenomena of occurrence of different forms of the same element having different physical properties but similar chemical properties is called allotropy. Give reason. Graphite is used as a lubricant and diamond is used as an abrasive. So in diamond, each carbon atom is sp3 hybridized and is attached to 4 other sp3 hybrid carbon atoms with strong covalent bond to form a 3-dimensional network structure. So diamond is hard in nature and is used as an abrasive. जबकि graphite में each carbon atom is sp2 hybridized and attached to 3 other carbon atoms with covalent bonds. जबकि 4th जो इलेक्ट्रॉन होता है इट इज अटैच्ड इन अ वीक वॉन डर वाल फोर्स विद द एडजेसेंट लेयर। तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि हेक्सागोनल रिंग्स बनती हैं और लेयर्स बनती है और एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में वीक वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो आसानी से टूट जाता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है और क्योंकि एक दूसरे के ऊपर स्लिप होते हैं इट कैन बी यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट। एक्सप्लेन द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ डाइबोरेन। तो डाइबोरेन में ईच बोरॉन इज sp3 hybridized
एंड फॉर्म्स 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसमें से 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और चौथा वेकेंट होता है। तो जो ये 4 ऑर्बिटल्स हैं उसमें से 2 हाइड्रोजन के साथ नॉर्मल बॉन्ड्स बनाती, जबकि इस बोरॉन का ये हाफ फिल्ड एक हाइड्रोजन के हाफ फिल्ड के साथ और साइमल्टेनियसली दूसरे बोरॉन के वेकेंट हाइब्रिड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह यहाँ भी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा और यहाँ नॉर्मल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से 2 बोरॉन एटम्स के बीच में ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये बनाना का शेप का होता है, इसलिए इसको बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। तो दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। वाई बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म BF6 नेगेटिव, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1। तो इसके वेकेंट शेल में सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल्स हैं, तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही हो सकती है, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल्स, सेकेंड शेल में d ऑर्बिटल नहीं होते। तो बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स इन बोरॉन ये 6 अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर पाता है, सिर्फ 4 ही बॉन्ड्स फॉर्म करता है। तो इट कैन नॉट फॉर्म BF6 जहाँ 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं। वाई बोरिक एसिड इज कंसिडर्ड एज वीक एसिड। बोरिक एसिड जो होता है जिसके 3 OH हैं, ये अनआयोनाइजेबल है, ये वाटर में आयोनाइज नहीं करता है टू गिव प्रोटॉन। ये वाटर में एज अ ल्यूइस एसिड एक्ट करता है और वाटर के OH नेगेटिव से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। एज अ रिजल्ट वाटर आयोनाइज करके प्रोटॉन देता है, तो बोरिक एसिड नहीं देता है, इसलिए इट्स अ वीक एसिड। A right chemical reaction for ozonolysis of propene followed by cleavage with zinc water। तो ओजोन इसके डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और यहाँ ओजोन ऐड हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से होमोलिटिक फिशन होगी और CH3CHO और HCHO ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। What happens when ethine is passed over red hot iron at 873 Kelvin? तो ये कंबाइन करते हैं 3 मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ बेंजीन। दिस इज द रिएक्शन। हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू बेंजीन? इसको जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे, तो ये जिंक ऑक्सीजन लेके जिंक ऑक्साइड बना लेगा और ये बेंजीन बन जाएगी। वाई इन आइसोमेरिक एल्केन्स द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग? क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाती है मॉलिक्यूलर साइज और सरफेस एरिया डिक्रीज करता जाता है, जिसकी वजह से वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता जाता है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। राइट अ नोट ऑन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जब किसी अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक QH के साथ हीट करेंगे तो उसका HX जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और एज अ रिजल्ट यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्योंकि मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है और बीटा पोजीशन से H किया है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जो HX रिमूव होता है वो KOH के साथ रिएक्ट करके KCl प्लस वाटर बनता है। तो this is the overall reaction. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.